बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। दुर्गापुर के लौदोहा थाना क्षेत्र में रविवार सुबह एक परित्यक्त मकान से जोरदार धमाके की आवाज ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। ये घटना लौदोहा फरीदपुर ब्लॉक के आरती गांव के उत्तरपाड़ा इलाके में हुई। धमाके के बाद स्थानीय लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए और लौदोहा थाने को सूचना दी गई। ग्रामीणों द्वारा आशंका जताई जा रही है कि वहां पर बम रखा हुआ था। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और परित्यक्त मकान के आसपास बैरिकेडिंग कर दी। प्रारंभिक जांच में पुलिस का अनुमान है कि मकान में विस्फोटक पदार्थ मौजूद था, जिसके कारण यह धमाका हुआ। फिलहाल इस घटना में किसी बड़े नुकसान या हताहत की खबर नहीं है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। যেমন বোম ব্লাস্ট হয়েছে এরকম আওয়াজ তারপর আর কিছু দেখতে পাইনি, অন্ধকার হয়ে গেছিল পুরো, ধুমো একদম ধোয়া উঠছিল একদম। তারপর আমি কিছু দেখতে পাই না, মেয়েটাকে নিয়ে কোলে নিলাম। তারপর আমি প্রচন্ড ভিড় হয়ে গেল। মেয়েটার কি লেগেছে সেটা ফোটা? হ্যাঁ লেগেছে, ওই যে লেগেছে। কি এটা বাড়িতে কেউ থাকে না? না কেউ থাকে না। বাড়িটা ভেঙে গেছে? হ্যাঁ ভেঙে গেছে, বাড়ি পুরোনো বাড়ি ছোটই। পুলিশ আসছিল? হ্যাঁ পুলিশ আসছিল। তো আপনারা কি ভয় রয়েছেন এখন? হ্যাঁ ভয় আছে। কি মনে হচ্ছে বোম ব্লাস্ট হয়েছে? এটা আমরা কিছু বলতে পারছি না। মানে বিস্ফোরণ ছিল? হ্যাঁ বিস্ফোরণই ছিল, কিন্তু বলতে পারছি না যে বোম ব্লাস্টও হয়ে গেছিল। তারপর আমরা দেখিনি যে কি হয়েছিল। মানে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গেছিল? হ্যাঁ কালো ধোঁয়া ছিল। কি নাম আপনার? रेशमा तारा खातून। इस्पात नगरी दुर्गापुर की विभिन्न सड़कों पर 251 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। सांसद कृति आजाद ने सांसद निधि से इसके लिए 30 लाख रुपए का आवंटन किया है। इस पहल का उद्देश्य इस्पात नगरी के आम लोगों की सुरक्षा और संरक्षा को सुनिश्चित करना है। शनिवार को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के दुर्गापुर थाने के डीसीपी पूर्व कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्धमान दुर्गापुर के सांसद कृति आजाद और आसनसोल दुर्गापुर के पुलिस कमिश्नर सुनील कुमार चौधरी ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं पुलिस कमिश्नर। দেখুন, এটা শুধু ক্রাইম ডিটেকশন না, আমি যেটা বললাম, ইভেন আমাদের ওমেন সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি, পাবলিক সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি, আমরা কোনো ল অ্যান্ড অর্ডার হলে ওখানে আমরা লাইভ ফিড দেখতে পারি। এছাড়া আমাদের যে ট্রাফিক, সবসময় আমরা মানুষের ট্রাফিক পরিষেবা দিচ্ছি, সেখানে আমরা এটাকে কাজে লাগাচ্ছি। ক্রাইম প্রিভেনশন তো অনেক হয়েছে, মানে আমরা সিসিটিভি দেখে অনেক ক্রিমিনালকে ধরেছি, মাল রিকভারি করেছি। সেটা ইভেন আপনারা দেখেছেন, আমরা সিসিটিভি লাস্ট যখন প্রেস ব্রিফও করলাম, অনেকবার সিসিটিভি ফুটেজ রিলিজও করেছি। তো ডেফিনেটলি এটা আমাদেরকে খুব কাজে লাগে। স্যার, এর আগে কি কোনোদিন কোনো এমএলএ বা এমপি আপনাদেরকে তাদের ফান্ড থেকে টাকা দিয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর জন্য? হ্যাঁ, আমরা আসানসোলে পেয়েছিলাম। আসানসোল এমপি সাহেব আমাদেরকে দিয়েছেন। বলছি স্যার, অনারেবল এমপি সাহেব যেটা দিলেন, এমপি লাগের টাকায় 30 লক্ষ টাকা, সেটা তো দিলেন, কিন্তু এটা তো এনাফ নয় আমার মনে হয় একটা শহরের জন্য। আমার কথা হচ্ছে যে সিএসআর প্রজেক্টে এখানে প্রচুর ইন্ডাস্ট্রিজ রয়েছে, প্রচুর ব্যাংকিং সেক্টর রয়েছে, তারা কেন এগিয়ে আসছে না শহরের নিরাপত্তা? না দেখুন, আমি যেটা বললাম, আমরা অলরেডি লাস্ট 1 বছরে 600 অ্যাড করেছি। তো এটা বিভিন্ন যে সিএসআর প্রজেক্ট আছে, বিভিন্ন যারা ব্যবসায়ী আছে, তাদেরকে সাহায্য নিয়েই আমরা করেছি। এবং যেটা এক্সিস্টিং আমি বললাম মোর দেন 1000 এখানে আছে। তো ডেফিনেটলি সেটা বিভিন্ন যে সংগঠনগুলো আছে বা ইন্ডাস্ট্রিগুলো আছে,
তাদের হেল্প নিয়ে আমরা করছি, আরও ভবিষ্যৎকালে আরও করবো। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्य प्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। पूर्व बर्धमान के औसग्राम से शेख अब्बास अली के बाद देश विरोधी पोस्ट के लिए फिर गिरफ्तारी हुई। इस बार रेल कर्मचारी इमरुल शेख उर्फ स्वप्न शेख वर्ष 50 को गिरफ्तार किया गया। उसका घर औसग्राम के पिचकोड़ी गांव में है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की। ऑपरेशन सिंदूर से पड़ोसी देश पाकिस्तान हिल गया। बाद में दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद युद्ध विराम घोषित हुआ। जानकारी के मुताबिक स्वप्न शेख ने फर्जी वीडियो पोस्ट किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज़ की नकल कर दावा किया गया कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। पोस्ट में हंसने वाली इमोजी के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश के झंडे जोड़े गए। भारतीय रेल कर्मचारी स्वप्न शेख ने फेसबुक पर यह देश विरोधी पोस्ट किया। कुछ अशुभ चिंतकों के सुझाव पर उन्होंने पोस्ट हटा लिया, लेकिन तब तक उसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर फैल चुका था। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। गुस्कारा पुलिस ने शाम को स्वप्न शेख को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की और रात में उन्हें गिरफ्तार। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। भारतीय सैनिकों के इस पराक्रम को सलाम करने के लिए रविवार को आसनसोल शिल्पांचल के विभिन्न हिस्सों में टीएमसी ने रैली निकालकर सेना के पराक्रम को सम्मान किया। आसनसोल शहर में INTTUC जिलाध्यक्ष अभिजीत घटक के नेतृत्व में गिरजा मोड़ से राहा लेन तक रैली निकाली। रैली में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय ध्वज थामे भारत माता के जयकारे लगाए। आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, असीमा चक्रवर्ती सहित अन्य टीएमसी नेता मौजूद थे। बाराबनी में आयोजित रैली में विधायक विधान उपाध्याय, असित सिंह आदि थे। कुल्टी में भी आयोजित रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण ADDA द्वारा कल शाम 2 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया गया। पहली परियोजना के तहत आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 26 रेलपाड़ क्षेत्र में डॉक्टर BC रॉय रोड से छपरैया मोड़ तक सड़क के नवीनीकरण और निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। इस सड़क के निर्माण पर लगभग 20 लाख रुपए की लागत आएगी। इस अवसर पर राज्य के मंत्री मलाय घटक, ADDA के चेयरमैन
कविदत आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीमुल हक सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। वहीं वार्ड नंबर 52 में श्यामा देवी प्राथमिक स्कूल के नवीनीकरण कार्य का शिलान्यास किया गया। आसनसोल में सिटीजन्स फॉरम नेशन सिक्योरिटी ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के सम्मान में एक विशाल सिंदूर यात्रा निकाली। इस विजय जुलूस में सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो, विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार, भाजपा नेता कृष्ण नंदू मुखर्जी, जिलाध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य, समाज सेवी बुम्बा मुखर्जी, अभिजीत आचार्य, अरिजीत राय सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रैली में पूर्व सैनिकों ने भी नागरिकों के साथ कदम ताल किया, जिससे अद्भुत नजारा देखने को मिला। बीएनआर मोड़ से शुरू होकर चित्रा मोड़ पर समाप्त हुई इस रैली में सभी ने जय हिंद और भारत माता की जय के नारे लगाए, भारतीय सैनिकों के शौर्य की प्रशंसा की। आसनसोल के डीएवी मॉडल स्कूल के 17 वर्षीय छात्र शरत प्रियदर्शी ने सीबीएसई 10वीं परीक्षा 2025 में 86% अंक हासिल कर टॉपर्स में जगह बनाई। हालांकि उनका लक्ष्य 90% से अधिक अंक लाना था, लेकिन परीक्षा से 5 महीने पहले एक हादसे ने उनके सपनों को झकझोर दिया। चेलीडंगा के एक कोचिंग सेंटर में नंगी बिजली के तार की चपेट में आने से शरत का हाथ बुरी तरह जल गया। कोचिंग सेंटर की लापरवाही के बावजूद उनके पिता संजीव प्रियदर्शी ने उन्हें तुरंत आसनसोल के निजी अस्पताल ले गए, जहां से बेहतर इलाज के लिए चेन्नई के वेलोर अपोलो अस्पताल रेफर किया गया। 5 महीने तक चले इलाज और कई ऑपरेशनों के बीच शरत ने हिम्मत नहीं हारी। इलाज के दौरान ही उन्होंने माध्यमिक परीक्षा दी और 86% अंक हासिल किए। हालांकि ये उनके और स्कूल के 90% के लक्ष्य से कम था, लेकिन उनकी इस उपलब्धि ने सभी को प्रेरित किया। शरत अब आईआईटी और जेईई की तैयारी में जुटे हैं और उनके माता पिता संजीव और सुनीता उनका पूरा साथ दे रहे हैं। सुने उनके पिता और शरत की आप बीती। क्या वो वक्त था, कैसे? वक्त ऐसा गुजरा इसके साथ पे कि मतलब लड़का ठीक ठाक अच्छा खासा पढ़ाई कर रहा था। अचानक वो मई के 15 तारीख को वो लक्ष्मण कोचिंग में ही इसको एडमिशन करवाए थे। करवाने के बाद वहाँ पता नहीं उन लोगों के इंस्टीट्यूट में वायरिंग का कुछ प्रॉब्लम था, वो आज तक उन लोगों ने ठीक नहीं कराया था। तो इसके कारण से बच्चे हाथ कुछ आगे बढ़ाए, जिसके कारण से मेरा बेटा का हाथ वहाँ पर ट्रांसफार्मर के वायर से हाथ लग गया था। अब उसके बाद फिर इसका हाथ इस तरीके से जला कि लगभग समझिए मैं 5 महीने तक इसको वेलोर और अपोलो चेन्नई कराने में ही इनका समय बीत गया। अब वो करने के बाद बच्चे का तो हौसला बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया, लेकिन जब ये आया तो फिर अपने कंडीशन को देखते हुए लड़का मेहनत बहुत किया। मेहनत करने के बाद क्यों झूठ बोले, काफ़ी ज़्यादा मतलब वो अपना एक रूम लेके नीचे काफ़ी मेहनत करके पढ़ाई किया और फिर आज इस पोजीशन पे आया है। तो मतलब सभी के आशीर्वाद के लिए मैं सबको शुक्रगुजार हूँ कि हाँ लड़का मेहनत किया। लेकिन इस बात के लिए एक और बात बोलना चाहूँगा कि कुछ एक कोचिंग सेंटर वगैरह जो हैं वो बच्चों को की मतलब बच्चों के भलाई के लिए कभी भी सही ढंग से रख नहीं पाते अपने इंस्टीट्यूट को। ये एक बड़ी परेशानी वाली कहानी है। अगर कोई इंस्टीट्यूट इस तरह से बच्चों की नेग्लिजेंसी के साथ में अगर खिलवाड़ करे तो मेरे को लगता है कि इसके पीछे प्रशासन को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो बच्चों को भेज देते हैं पढ़ाई करने के लिए, बच्चे चले जाते हैं, हम लोग किसी के भरोसे ही बच्चों को भेजते हैं वहाँ पे।
लेकिन इंस्टीट्यूट वगैरह सिर्फ पढ़ाई करवाना और पैसे कमाने तक ही ये लोग उसमें ध्यान देते हैं। दुर्गापुर महकमा अस्पताल में रविवार सुबह पीपीपी मॉडल के तहत एक अत्याधुनिक सीटी स्कैन यूनिट का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री प्रदीप मजूमदार ने फीता काटकर यूनिट का शुभारंभ किया। समारोह में आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन कवि दत्ता, सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर धीमान मंडल सहित अन्य उपस्थित थे। मंत्री प्रदीप मजूमदार ने कहा कि इस सीटी स्कैन यूनिट के शुरू होने से सामान्य मरीजों और प्रसूति विभाग की माताओं को इलाज में आसानी होगी। ये सुविधा अस्पताल परिसर में ही उपलब्ध होने से चिकित्सा सेवाएं तेज और बेहतर होंगी। वहीं कवि दत्त ने कहा कि ये अस्पताल राज्य के शीर्ष सरकारी महकमा अस्पतालों में शुमार होने की ओर अग्रसर है। सिटी स्कैन सेवा शुरू होने से एक ही छत के नीचे पूर्ण चिकित्सा सुविधा मिलेगी, जिससे डॉक्टरों को भी सहूलियत होगी। তারা সকলেই নিখরচায় পাবে। কোনো বাইরের কেউ এসে যদি করাতে চান তারা এই নিখরচায় এই জায়গায় স্ক্যান করাতে পারবেন না। এখানে খালি যারা আমাদের এই হাসপাতালের রোগী, ইন্টারনাল রোগী বা ওপিডি থেকে যদি কেউ দেখিয়ে এখানে ডাক্তার কোনো বাবু মনে করেন যে একটা স্ক্যানের রিপোর্ট হলে উনি পরবর্তী পরিষেবা কী হবে সেটা স্থির করবেন, সে তাদেরও এখানে নিখরচায় করা। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।